And hello everybody who is watching this live. I am life coach Malini Rustagi, and today we have Preeti Khare with us. She is a transformational coach as well as a relationship coach. And today we are talking about relationships in the time of COVID. She has been an HR person as well for a good span. So she has a lot of experience about dealing people and emotions and everything related to them. So we welcome Preeti here, and I would begin this by asking Preeti a very simple question. That Preeti, why did you choose transfer to be a transformational coach or a relationship coach? Yeah, thank you, Malini, for inviting me here on your live session today. It's a pleasure to come here and be a part of this program. To answer to your question, why did I choose relationship coaching or transformational coaching as one of the, careers for myself? Um, so I was, as you said, I was a relationship sorry, I was an HR person, and when I relocated to India in 2017 after about say 15 years, and when I was here, I when I came back, I realized that there was something missing which I really wanted to pursue, and it was a huge push and pull from inside which kind of wanted to take me somewhere else. So that missing piece I found in the coaching space, which was more about transforming oneself and becoming a better person, a better version of yourself. So I started getting very deep into the inner transformation space, and also realized after traveling various countries, Malini, that across the cultures, कहीं चले जाइए आप, I stayed in Dubai, I stayed in the US for so many years, and then I had been in India, and now again in India. The core of happiness and misery at the same time is relationships, according to me. आई फील कि जहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं, वहाँ पे you can see a lot of happiness and pleasantry and all of those nice things. But when the relationships are suffering or they are not intact, that's where there is a lot of problem. तो मुझे लगा कि this is one area, though it is a lot of taboo in India, and I to address to the public through this platform today, there will be a huge request that people should actually be now coming out in public और आराम से लोगों को अपने relationships को ठीक करने के लिए या खुद के inner transformation के लिए बहुत आराम से बात करनी चाहिए. It's a beautiful thing to do. क्योंकि ये एक लाइफ है जिसमें अगर हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टॉर्टेड है या इनर सेल्फ इज नॉट एट पीस, तो हम खुद कभी भी बहुत खुश नहीं रह पाएंगे. एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग देन? सो आई थिंक कि पीपल शुड कम forward and talk about their relationships very comfortably, and coaches like you and me can help them. I am pretty much in the coaching space and more with a niche to relationships because I'm very passionate about really fixing कि जहाँ पे भी दिक्कत है लोगों को रिलेशनशिप में, whether it is a husband wife relationship, between the couples, parents and children, and between the peers, employee employer, whatever it is, and I'm extremely passionate about that, to fix and then move on. So that's to answer your question, why relationship coaching? It's because I see a huge potential in this area that people need to really move on and mend these relationships, be happy about that. थैंक यू सो मच प्रीति. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रही है. क्योंकि उसका रीजन ये भी है कि अब 1.5 साल होने को आया है लॉकडाउन लगते लगते, और वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं. बहुत सारे कपल्स जो कि शायद अपना वीकेंड साथ गुजारते थे, अब लंबे समय तक एक दूसरे के साथ हैं. ठीक है, तो आदतों में भी बदलाव है, थोड़ा तालमेल बिठाने की लोग कोशिश कर रहे हैं. लास्ट टाइम जब कोविड वेव आई थी तो फिर भी लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, लेकिन आज जो टाइम है, जो ये वेव 2 का टाइम है, जहां पर
they are also losing their near and dear ones Oh yes. at Yeah. a Yeah. big scale, I would say. और साथ में लोगों के पास मीडियम्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो Yeah. उसमें एक रिलेशनशिप जो लोगों का है, जो एक जो जिसे बोलते हैं ना कि जो इनकेपेबिलिटी आती है, वो Right. खींच Right. जो आती है वो दूसरे पर उतरती Right. है, especially when it comes to couples. So That's I true. see a lot of couples whose relationship has got strained during this time. You're right. You're So right. please Yeah. talk about that. Yeah. How can we go ahead and help them out in this session, or what will be your suggestions to that? Right, right. Malini, this is a beautiful thing that you have brought it up. And I will go back जो आपने शुरुआत में कहा था. आपने शुरुआत में कहा कि बहुत आदतों की बात है ये. And I will pick on that word that you used कि हम लोग जो हैं, सारे human beings, we are pretty much creatures of our habits. राइट, हमको बहुत आदत हो जाती है एक तरीके से जीने की, एक तरीके से रहने की, राइट. तो अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुबह घर से जाना, और women, like in the conservative societies and places, and still in the lot of households in India, बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि रोल्स एकदम क्लियरली डिफाइंड है, राइट. उसमें ये है कि मेन विल गो आउट एंड वर्क, और जो लेडीज हैं वो घर में बच्चों को देखती हैं, खाना बनाती हैं, ऑल हाउस होल्ड चोर्स, इट इज वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड. As the society is progressing and westernizing, and as women are getting more empowered, now with the education, abhi kya ho raha hai ki men and women both have started going out and equal, they have their beautiful careers to themselves. अभी क्या हुआ है कि जो आपने कोविड में बोला, तो तब हमको कैसी आदत होती है कि वी आर यूज टू कि ओके 9 बजे, 9:30 बजे ये पर्सन विल गो, एंड बाकी वी विल बी रिमेनिंग विद फॉर आवर, एंड द किड्स विल बी गॉन ऑल्सो फॉर द स्कूल्स. उसके बाद हम रह जाएंगे, पूरा काम करना है, और उसके बाद जो लोग घर में रहते हैं, जो वाइफ भी जाती है, उनका भी एक स्केड्यूल होता है, राइट. वो भी सुबह अगर तैयार होकर उनको जाना है तो दे विल गो मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली. बट अभी क्या हो रहा है, उस आदत से दूसरी आदत में आना, जिन लोगों को हमें अपने आसपास देख पाने की और यह देखने की बहुत ज्यादा आदत नहीं थी, राइट, उनको हम दिन रात अपने साथ देख रहे हैं. और वी नो दैट रिलेशनशिप्स इज ऑल अबाउट, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, उसमें खूबसूरती भी उतनी है और उसी में बहुत परेशानियां भी हैं. तो जब हम साथ रहते हैं, तो जो चीजें हम अभी ओवरलुक करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी, बहुत बहुत ब्रॉड होती है. बिकॉज आपको मालूम है कि 8 घंटे 9 घंटे हमको साथ नहीं रहना है. तो आप सुबह जो चीज सुन के और उसको अनदेखा कर सकते हो और जा सकते हो अपने अपने काम पे, वो अभी बॉदर करने लगती है, बिकॉज वही इंसान आपको बार बार साथ में दिख रहा है, तो वो उसको रिमाइंड करता है बार बार, क्योंकि ही सेड दैट और शी सेड दैट एंड आई वाज हर्ट, तो ये क्या हो रहा है कि साथ में रहने से अभी जो टॉलरेंस और वो आना चाहिए, अभी उसकी आदत नहीं पड़ी है. तो आदत, आपकी आदत से जो मैं कह रही हूँ कि हमारे को सबको आदत हो जाती थी एक तरीके की, और अब वो आदत में देयर इज अ गोइंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. उस आदत से दूसरी आदतें डालनी है, राइट. तो अब एक दूसरे की जब आदत डालनी है, तो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. आदत हो नहीं रही, क्योंकि इमीडिएटली तो अडल्ट जब बच्चों के साथ ही, जिन पे हमारे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल है हमारा बच्चों के ऊपर, राइट, उनके भी साथ में एज दे ग्रो, तो हमको वी हैव टू गिव देम दैट लीवे एंड फ्रीडम, कि नाउ दे आर बिकमिंग अडल्ट्स, वी कांट रियली हैव मोर ऑफ कंट्रोल, राइट. वी हैव टू गिव देम दैट फ्रीडम. जब अडल्ट्स के साथ हमको डील करना है, दो अडल्ट्स के साथ, आई मीन एक दूसरे के साथ, देन इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो इसकी सेट एक तरीके की आदत है, और वी स्टार्ट पुटिंग सर्टेन लेबल्स कि ये इस तरीके से बोलता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये इस तरीके से बोलती है, ये नहीं अच्छा लगता, राइट. या सर्टेन हैबिट्स, यू आर नॉट यूज्ड टू दैट. कोई आदमी को 10 बजे तक सोना अच्छा लगता है, समटाइम्स women feel like getting up very early, they are not comfortable with men probably lying down till 8 o'clock, जो कि सुबह उनको तैयार होना था, अब एक शर्ट पहन के बैठ के वहां पे काम कर लेंगे. सेम हैपेंस विद women. अभी हमको जो सुबह सब कुछ करके जाना था, अभी वी कैन जस्ट चेंज एंड देन क्विकली कम एंड सिट ऑन आवर वर्क प्लेस. सो देयर लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड अस. उससे ये क्या हो रहा है कि बार बार जो एक दूसरे की आदत डालनी चाहिए, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, उसका मतलब ये है
that relationship has to be built again, which means lot of things that you let go. वो जो हमको कंपैशन लाना था, वो जो टेंशन डिफ्यूज करना था, वो जो लॉट ऑफ पेशेंस वाज रिक्वायर्ड, जो हमको लग रहा था कि अभी चल जाता है काम, सुबह चले जाना है, शाम को आना है, थोड़ी देर मिलना है, वो अभी क्या हो रहा है, डे टू डे एवरी डे बेसिस पे आपको उसी के साथ डील करना है. तो ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, पेशेंस, ट्रस्ट, लव, अफेक्शन, ऑल दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट. तो वो नई आदतें डालने में टाइम लग रहा है, और उसमें बहुत सारी फैमिलीज, क्योंकि और भी टेंशन है मालिनी, बहुत सारे और टेंशन से किसी की फैमिली में से लोग चले जा रहे हैं, किसी के लोग बहुत सिक हैं, तो जस्ट कंपाउंडेड इफेक्ट. तो अभी लोग जो है वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनसे बाकी चीजें बाहर की नहीं संभल रही, और वो घर में और दूसरे टेंशन उनको होते हैं, तो उनको इट इज जस्ट. तो अभी एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है क्योंकि बस बहुत हो गया, इनको जल्दी जाना है, काम पे जाएं. और मैन ऑल्सो फील कि अगर इनको जाना है तो जाएं, यू ऑल, और या फिर हमें जाना है तो हम जाएं, ताकि वी गेट सम सोशलाइजेशन डन. और अभी सभी लोग घर पे हैं, तो वो सोशलाइजेशन भी बंद हो गया है, और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है. मालिनी, आई कांट हियर यू. आई कांट हियर यू मालिनी. I'm sorry. Yeah. नो प्रॉब्लम. What I'm saying here is कि अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें सोशलाइजिंग तो खैर बहुत दूर की बात हो गई है, राइट. जो कि यूजुअली शाम को होता था लेडीज के लिए, या अक्सर लोग आपस में पार्क में मिलते थे और कुछ बात करते थे, तो वो सब उसकी जगह तो अब ऑनलाइन हो गया है सब कुछ ही. करेक्ट. So, as far as socializing is concerned, my question here would be the same, that what can they do so that they maintain an amicable relationship between themselves, जो कि होती सी जा रही है. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लेवल हाई है, एक दूसरे को कुछ कह दिया तो the first thing which happens in a household is cease of communication. राइट. जो कम्युनिकेशन थी रही सही, वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि किसी बात का बुरा लगा या कहीं का गुस्सा कहीं निकला, उस वजह से. राइट. राइट. तो रादर देन कन्फ्रंटेशन या सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग इट आउट, वो उसकी जगह ले ली है एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में, जिसमें दोनों चुप हैं और बात नहीं कर रहे हैं. राइट. सो तो क्या कर सकते हैं तो बस उस एमिकेबल कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सकें. राइट. सो मालिनी, इसके लिए 2-3 चीजें हैं जो हमको वैसे भी करनी चाहिए. वंस यू बिकम अ कपल, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमको ट्रेन वैसा नहीं किया गया, कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई है. शादी हो जाती है और हम अभी तो आजकल बहुत सारे लोग जान पहचान के बाद ही करते हैं शादियां, एंड रिलेशनशिप्स जो घर में है, तो पीपल नो ईच अदर. उसके बाद भी आई थिंक हमारी कंडीशनिंग बैठ के बात करने की या चीजों को सॉर्ट आउट करने की नहीं है. अगर आप अपना याद करिए, या मुझे ऐसा याद है, हम जैसे बड़े हुए हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे हैं वो ऐसे थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, राइट, वी वर टोल्ड, राइट, हमको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. हमको वो टेलिंग और इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत है. हमको बैठ के बात करने की आदत वो हमारी डाली नहीं गई, क्योंकि शायद हमारी प्रीवियस जनरेशन ने ऐसा देखा नहीं जो अब हम अपने बच्चों के साथ करते हैं. वी एक्चुअली हैव दैट क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं. उसमें इट मीन्स फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम. इट मीन्स कि हम लोग 4 लोग 5 लोग जितने भी हैं साथ में बैठेंगे, वी विल डिस्कस, वी विल. ये अब आ रहा है. इससे पहले वाली जनरेशन में हम जिसमें बड़े हुए थे उसमें तो ये था कि ऐसा बता दिया और मम्मी पापा ने बताया मतलब ठीक ही होगा, राइट. उसमें वी वुड नेवर क्वेश्चन दैट. अभी आजकल बच्चों को दे आर अवेयर, उनको वो क्वेश्चन करते हैं. तो सबसे पहला जो चीज है मालिनी, वो ये है कि हमको वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए. वेरी वेरी हेल्थी बाउंड्रीज इन द हाउस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स क्लियर. अब जब लोग घर पे हैं तो क्लियर डिमार्केशन, राइट. इफ बोथ एज अ कपल बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, राइट, तो अब उसमें आपको भी अगर 8 या 9 से बैठना है, लाइक फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन इन द फैमिली, अगर उनका 8 या 9 बजे से ऑफिस शुरू हुआ और शाम तक चला, तो आप ज्यादातर देखिए कि मेन विल गो ऑन देयर वर्क प्लेस एंड दे विल बी अनडिस्टर्ब्ड. वो अपना या तो रूम बंद कर लेते हैं, या तो फिर विमेन ऑल्सो विल टेल कि पापा की मीटिंग चल रही है, पापा की मीटिंग चल रही है. घर में सब लोग बड़े कहने लगेंगे वहां मत जाओ,
At the same time, with kids also at home, with everybody at home, in-laws at home, mother or parents at home, whoever it is, women will sit on the workplace. वो भी काम करने जाती है और वो भी अपना एक certain time पे उसका भी ऑफिस वर्क शुरू होता है. But what happens is हम as women ही prioritize नहीं कर पाते उसको. हमको मालूम है कि 10:30 बज रहा है और अभी भी हम किचन में काम कर रहे हैं, तो हमको 10 चीजें दिख रही हैं. बच्चे ने नाश्ता नहीं करा, इन लॉज को नहीं दिया, मम्मी पापा को नहीं दिया, हस्बैंड को नहीं दिया, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज वी आर कंडीशन दैट वे. अगर चले गए होते तो चले गए होते, घर पे होते तो वी कैन नॉट लीव एंड मेक अ वेरी हेल्दी बाउंड्री, से दैट दिस इज माई ऑफिस टाइम बिगिंस नाउ and I have to sit on my work table and start working undisturbed. तो अगर जो आपने बात कही कि बैठ के बात करें, तो शायद जब ये कोविड शुरू हुआ था और अगर ये बात हमको ये सिचुएशन बिकॉज एकदम अनफोर्सीन थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, राइट, अगर ये बैठ के हमको जरा सा भी इसका आभास होता और उसको हम बैठ के बात करके शुरू करते इस चीज को, या अब कर सकते हैं कुछ लोग क्योंकि अभी भी बहुत अनसर्टन है कि दिस इज अ बाउंड्री. तो जब मेरा काम भी शुरू होगा और आपका भी शुरू होगा, तो दिस शुड नॉट बी द केस कभी आप उठ जाओ बच्चे को खाने के लिए, राइट, कभी मैं उठ जाऊंगी. व्हाई इट इज द वुमन, राइट, हु अगर 4 बार बच्चे ने बुलाया तो बच्चा भी मम्मी के पास ही आता है और बोलता है मम्मा आई नीड समथिंग, वो डैडी के पास नहीं जाएगा क्योंकि शायद द वे द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, राइट, उनको पता है कि ये काम मम्मा का ही है. बहुत कम घरों में आप देखोगे कि वो बच्चे पे फादर के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, जबकि उनको भी पता है कि मीटिंग चल रही है, बट इट इज अ एवरीडे थिंग नाउ, और वो बच्चा भी वहीं आता है. तो हाँ, और मम्मी भी क्या होता है, एज मदर्स वी विल गेट अप फ्रॉम आवर वर्क एंड गिव द फूड एंड कम बैक. वी कैनॉट पुट अ वेरी क्लियर बाउंड्री कि नाउ दिस इज माई ऑफिस टाइम एंड आई विल नॉट गेट अप टिल 6 o'clock, maybe 6, 7, whatever is the timing. So I think having those healthy boundaries established, whether it is work, whether it is entertainment. तो मालिनी कई बार ऐसा होता है, अभी जब हस्बैंड्स आते थे या वो होते, तो एक टीवी, अगर एक या दो टीवी हैं तो उनका चैनल अगर उनको देखना है सपोज, तो दे विल कम बैक होम एंड दे विल स्विच देयर चैनल. विमेन इज गॉन इनटू द किचन या फिर वो अब आएगी तो अपना टाइम सेट है. अभी सारा दिन घर में रहने के बाद साथ में और कुछ ज्यादा एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, तो क्या होता है कि आप उसमें भी, इफ देयर इज वन रिमोट इन द बेडरूम और सम प्लेस, तो हस्बैंड चलाए, वाइफ चलाए, किसका चलना चाहिए, अगर इसकी एक बाउंड्री या बात करके सेट हो जाए, तो जो कंफ्रंटेशन स्मॉल स्मॉल इश्यूज पे होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं, व्हाई ऑलवेज योर साइड, व्हाई ऑलवेज यू विल बी द सॉर्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली. सो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाएंगी जब हमको ये होगा कि ओके दिस इज अ बाउंड्री दैट वी आर सेटिंग, sit and talk that let's decide. अगर इतने से इतने बजे तक आप अपना चैनल देख रहे हो तो हो सकता है इतने से इतने बजे तक मुझे शिवानी देखना है या मुझे कोई ओपरा देखना है फॉर एग्जाम्पल, और न्यूज देखना, वट एवर. सो इफ वी हैव दोज हेल्थी बाउंड्रीज set up, we will be able to be in a much more patient and resilient state. One, that. Second is, I feel that why it is happening. I very strongly feel that we become very demanding. मालिनी, जब हम घर पे होते हैं तो वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि अगर वही इंसान, चाहे वो हस्बैंड और चाहे वाइफ, वो चले जाएगा तो आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि आपको मालूम है इज नॉट एट होम. बट when that person is at home in front of you, your expectation with that same person is कि ओके मैंने खाना बना दिया, उसने बर्तन क्यों नहीं धो सकता, या मैंने अगर ये कुछ कर दिया तो ये क्यों नहीं कर सकती. सो दोज आर सेट इनहेरेंटली, आप कहते नहीं हो बट दे आर बीइंग सेट इन द माइंड्स. तो वो जो एक्सपेक्टेशन सेट होती है, अगर उस एक्सपेक्टेशन की वजह क्या है, अगर उसका रूट कॉज देखेंगे मालिनी, तो उसका रूट कॉज है आर नॉट बीइंग एबल टू बी एट पीस विथ आवरसेल्व्स. जो काम हम कर रहे हैं वो हम शायद वैसे भी करते, अगर वो इंसान हमारे सामने नहीं होता तो हम तब भी कर रहे होते और दोनों कर लेते, खाना भी बना लेते और बर्तन भी कर देते. अगर हेल्प तो आ नहीं रही है तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है आजकल, और भी ज्यादा इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज देयर मेड्स आर नॉट देयर, राइट. तो अब वो काम भी आपको करने, मगर आप दोनों कर लेते अगर हस्बैंड नहीं होता या वाइफ नहीं होती अगर आपके सामने, बट क्योंकि दिखता है देन यू फील दैट देयर इज एन एक्सपेक्टेशन. So if that expectation is not there and you are at peace with yourself, then think about a situation. Can I talk to myself?
क्या मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ कि अगर मैं सोच लूँ कि दिस पर्सन इज नॉट हियर, and can I really contribute very peacefully and do and not get angry, not have any grudge is another thing. So, and that comes with being very mindful. And when I say mindful, it comes with certain activities that we would want to do. अब जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम लोग घर पे मेडिटेशन है, राइट, अच्छे कुछ जॉनरा पढ़ना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना जिससे कि आपको, या कुछ अच्छी ऐसी you know get exposed to certain content on YouTube, on which kind of opens up. और मैं अपनी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप में मालिनी यही बात करती हूँ that once we begin as human beings, men or women, either side, to talk to ourselves in and change our inner narrative. जो हम बात अपने आप से कहते हैं तो that is what plays on our mind and we get angry and hurtful and grudgeful and what not. तो वो जो narrative अगर हम change कर लेंगे कि okay, let me, can I think this way that मैं अभी भी घर में अकेली हूँ, can I handle this, and then maybe in the evening when that person is free, expect that, not right now, not really have that competitive spirit कि अगर मैंने खाना बना लिया तो वो बर्तन क्यों नहीं धोते, you know, things of that nature. So I think one will be very, very peaceful with oneself if we have certain practices in place, which is about that will come through meditation, that will come through gratitude practice. आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. अगर सुबह उठ के अगर हम 5-6 चीजों के लिए उनके बारे में बोलना शुरू कर दे मालिनी, छोटी छोटी चीजों के लिए, इतना कुछ चल रहा है, राइट, कोविड में कितना कुछ हो रहा है, तो जो चीजें हमारे पास हैं या जो इंसान हमारे पास हैं, अगर हम उनको वैल्यू करना शुरू कर दें ऑन अ डेली बेसिस, यू नो दैट दिस पर्सन इज इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. My husband is there, I'm grateful for that. What he has provided me, I'm so grateful for that. And I'm so happy he's there around me, right? Or my wife is there, she does so much for me. If we begin to practice that, I think वो जो setting the tone of the day होता है, वो set हो जाता है in the morning that okay, I have to be grateful for this few things in my life that I have, you know. So I think gratitude का practice, being mindful, meditating, and doing some regular exercise. You do exercise, what it does, and why I am also advocating exercise a lot, because I don't remember clearly मैं कितने सालों से, मेरे ख्याल से 1 घंटा वॉक करती हूँ मालिनी, राइट, एवरी डे. अभी कोविड के दौरान भी अगर नहीं हो पाया, आई डिड नॉट गो डाउन स्टेज, बट आई एम वॉकिंग ऑन माई टेरेस. And why I really advocate that a lot is because I'm sure आपको पता होगा मालिनी, and I'm sure जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है, there is a hormone which is called dopamine, right? And dopamine is an exercise hormone that is secreted when you're doing some kind of rigorous exercise. The moment that is secreted, there is a lot of happiness that happens within you. You don't have to do anything. उसके लिए आपने एक्सरसाइज करके, क्यों हम जब एक्सरसाइज करते हैं और रिगरस वॉक करते हैं या कुछ अच्छा एरोबिक करते हैं, व्हेन वी कम बैक यू फील वेरी एनर्जाइज्ड एंड गुड about the whole thing. The reason precisely is because that hormone is secreted. So even in these COVID times when you can't go out, there are certain machines that you have at home, or you can watch. Lot of clubs are online these days that you can join every day, do yoga or walk or stand at one place and do aerobics. There's so many things happening online. आजकल virtual world में तो पता नहीं कितना कुछ हो रहा है कि आप online जाके बहुत कुछ कर सकते हो. So secreting those good hormones that will keep you happy, and when you will be happy as a person, men or women, either case, children for that matter, you can sort of distribute that, scatter that around you. So I think these 4 things, I would say that they're very, very important. And this is not a one-day affair, Malini. Somebody needs to actually do almost every day, exercise every day, be mindful every day, meditate every day, be grateful every day. It is the time that has हमको कितना कुछ सिखाया कोविड ने. So I think if we can't be grateful now, I don't know when will we learn to be grateful for what we have in our life. Absolutely, absolutely. In our last 3 sessions, I mean, this is the 3rd session that we have. So in all the 3 sessions, I would say
the the common thing which I have been telling and the guest speakers have been telling is the same thing. Stay in gratitude, which is Right. फोरमोस्टली इम्पोर्टेंट रीजन बीइंग आपका जो भी फोकस अभी तक नेगेटिव पर है, जब आप ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा. That's true. That's true. और रादर देन वो काउंटिंग सुबह, द yeah. ट्रीज, स्टार्ट काउंटिंग मैंगोज. Oh, yeah, yeah, absolutely. Beautifully said. Beautifully said. Yeah, if you and that's why I am stressing so much on the morning for the gratitude. Some people do write the gratitude journal in the evening, and nothing against that. क्योंकि आप सारे दिन में कुछ लोग उसको समराइज करके लिखते हैं कि ये सारी चीजें थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. But I like to do it the other way around, Malini. I don't mind doing it in the evening, but सुबह मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आई रियली कॉन्शियसली वांट टू सेट द टोन फॉर द डे. मैं उस ग्रैटिट्यूड से अपना दिन शुरू करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं उस जो भगवान ने मुझे दिया है या यूनिवर्स ने मुझे जो दिया है उस ग्रैटिट्यूड में जीना चाहती हूँ सारा दिन. एंड दैट रिमाइंड्स मी इन द डे व्हेन आई एम सॉर्ट ऑफ लूजिंग माई सेल्फ. वो उस टाइम पे मुझे तुरंत याद आता है. आई हैव स्टार्टेड पुटिंग, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स इन माय रिलेशनशिप कोचिंग आल्सो, Malini, wherein there is something that I call labeling your emotion, right? And which means कि आपका जब इमोशन हो रहा है आपकी बॉडी में बहुत सारे सेंसेशन होते हैं. When you are high on a certain emotion, whether it is happiness, whether it is sadness, anger, shame, fear, whatever it is, you are so high on it and your body starts to tell you much in advance. We sort of shun that on the other side. We don't recognize, we don't want to recognize that emotion, which is already your body is telling. It's very intelligent mechanism, right? It tells, the brain tells you that you are about to get angry, you're about to lose yourself. That's when you put your emotion label and tell it that here you are getting angry for no reason, right? Remember the gratitude you should be in, right? Remember the good things around you. That, and once you start labeling that feeling that you are going through right now, and you can label each emotion, as I said, like when you're feeling happy, you're with your child, with your husband, with your mother, with your in-laws, just giving a hug. How we sort of have those emotions and everything coming out because of the hormones that are secreted, oxytocin, dopamine, all of these cuddle hormones, compassion hormones, right? तो वो सब हमारी बॉडी में जब secrete होते हैं तो they give you happiness, and you have that realization in the tummy, in the heart, in your, sometimes on your cheeks. My I have realized so many times when I'm getting angry, I can feel the heat close to my cheeks, and then I touch myself and I say, oh my god, it is getting there, very close to my anger. I need to check, put my label there, and I put that label that I'm getting about to get angry, and check it right there, that can I come back in that gratitude? Can I really appreciate what I have in my hand today and not get angry? So maybe few things like that. I would also like to talk about one thing very important and would like to convey to the audience, Malini, if you allow me that. Yeah, sure, please go ahead. Yeah. So Malini, in my relationship coaching also, I talk a lot about how to sort of in these times टेक केयर ऑफ योर इमोशंस. टेक केयर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यही बात पूछते हैं, आप कहते हो कि कंट्रोल करो, होता नहीं है कंट्रोल, कैसे करें, रोना भी आता है और सो टू कैसे का आंसर एक बहुत पहले देयर इज द साइंटिस्ट कॉल्ड एल्बर्ट एलिस, and he was a psychologist come scientist who worked on the hormones, and he talked about something called rational emotive imagery. Okay, and what is this concept about? He talks about four steps how to sort of recognize your emotions and then take care of those and come back to normal. और ये स्पेशली इस कोविड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कैसे करते हो आप उसमें? द फर्स्ट स्टेप, मालिनी, इज दैट द मोमेंट there is a trigger, right? Something, a trigger. It can be with a child, it can be with your spouse, your parents, in-laws, anybody. जब ट्रिगर होता है कि जैसे आपने बच्चे को कहा, सपोज फॉर एग्जाम्पल, कि ये तुम 5 घंटे से वीडियो गेम खेल रहे हो, इसको बंद करो. आपने एक बार कहा, 2 बार कहा,
you will say it with peace, with cuddling, with all of that, कि अब बंद कर दो, अब बंद कर दो. It does not happen. As a parent, you're not liking because screen time बहुत हो रहा है, all those things that you don't want the child to get into, right? तो आपने उसको मना किया, जब नहीं हुआ तो उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आपका ट्रिगर पॉइंट बन गया. अब इसके बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड. Recognizing your emotion at that, the first step is that you imagine. जैसे ही वो ट्रिगर आपको समझ में आया, आप 2 मिनट के लिए टेक अ पॉज एंड इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो, ओके? एंड व्हेन आई से वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मैंने इसको खेलने दिया तो क्या होगा, ये खेलते रहा तो क्या होगा. तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मैंने विजुअलाइज करा 1 मिनट और सोचा कि अभी आई विल गो, probably I will yell, the child will be very angry, he will cry, he will sulk, all that. And it doesn't take much because आपके thoughts 60 million thoughts आते हैं, हमको सबको पता है एक दिन में. तो आप सोचो कि कितना फास्ट स्पीड है उसका. तो वो थॉट इमीडिएटली आ जाता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है इसका. द मोमेंट आपको वर्स्ट केस आपने विजुअलाइज किया, सेकेंड इज इमेजिन योर रिएक्शन दैट इज गोइंग हेवायर, राइट? कि जो सेकेंड स्टेप जो आपको मैंने फर्स्ट में बता दिया, दैट इज एक्चुअली सेकेंड, विच इज आप उसमें अपने आप को इमेजिन करो कि आपने क्या किया. तो पहले ट्रिगर क्या था, चाहे वो बच्चे का है चाहे स्पाउस का है. सेकेंड, आपने क्या किया उस सिचुएशन में विच इज वेरी बैड फॉर यू और विच इज द ट्रिगर. तो आपने अपना वर्स्ट एटीट्यूड उसमें इमेजिन करा. द थर्ड इज you imagine yourself reacting differently to the same situation. Okay, so now take a pause and say, oh, if I am capable of doing that, am I capable of doing something else? And imagine yourself again handling with calm and say, okay, so I will allow you, I'm giving you this freedom, I'm just seeing how long can you do that. Going to the child and then saying that, imagining yourself. So visualize. All this is happening in visualization, Malini. And the fourth step is practice talking to yourself, which is आप उसी 2 सेकंड में अपने आप से ये बात करते हो, which is better? What is that I want to do? Am I too compelled right now to execute the first reaction that I got, or should I be going with the second? What is healthy for me? A self-talk, जिसको हम कभी कभी मेंटल चैटर कहते हैं, वो यूजुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है. लेकिन ये जो है, जब मैं उसको बोलती हूँ सेल्फ टॉक, दैट मीन्स यू कंस्ट्रक्टिवली टॉक टू योरसेल्फ. सो दीज आर द 4 स्टेप्स. ये टोटल में 60 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता है, एक में. आई हैव प्रैक्टिस दैट and I will not tell you anything, because and that's why this paper, and that is why this thing that I brought it up, I really wanted to share it with a lot of people, that 1 मिनट लगता है पूरे एपिसोड में, और आप सब कुछ सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, और उसके बाद इट इज द चॉइस दैट द पेरेंट और द चाइल्ड और द स्पाउस दैट यू वांट टू मेक, कि विच वन डू यू वांट टू रियली गो बाय. जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं इसको, तो ज्यादातर जो लोग अपने आप में कुछ चेंज लाना चाहते हैं और चीजों को हार्मोनियस रखना चाहते हैं, दे विल चूज ऑप्शन नंबर 2 एंड दे प्रैक्टिस दैट. बार बार उन्होंने ये सेल्फ टॉक अपने आप से की, और वो आदत. अगेन कमिंग बैक एंड कंप्लीटिंग योर सर्कल, मालिनी, इट्स द क्वेश्चन ऑफ हैबिट्स. नाउ आई एम इन अ हैबिट ऑफ each time talking to myself, each time giving myself, allowing myself to talk to myself. अभी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोई अलाउंस देते नहीं है, which means कि ट्रिगर हुआ, रिएक्ट किया फटाफट, गुस्सा हुए, चीज खराब हुई, बाद में पछताए, जाके बच्चे को चिपकाया, हस्बैंड से सॉरी बोला, वाइफ को सॉरी बोला, all this drama happens. We can avoid that by practicing what I just told, these 4 steps. And they're simple, and it's a 1 minute exercise. और दिन में ऑनेस्टली मैं खुद अपने आप को 4 बार हो जाता है ऐसा. 4 बार ऐसी सिचुएशन आती है, आप दूसरे कमरे में हो, यू आर मेकिंग योर द ब्रेकफास्ट, यू कॉलिंग योर हस्बैंड, योर किड्स, और एक एक जगह आ रहा हूँ, हम सबके घर में होता है, राइट? तो जब वो आ रहा हूँ होता है, तो आपको लगता है इज माई टाइम नॉट इम्पोर्टेंट, और वो थोड़ा सा ट्रिगर जैसे ही हुआ, तो आपने अपने आप से बात करी कि मैंने वो हेल्दी बाउंड्री स्टैब्लिश कर ली है.
मैंने घर में सबको बता दिया है कि 10:30 आई विल बी एट माई डेस्क एंड नाउ पोस्ट इतने में अगर सब लोग आप लोग नाश्ता करोगे गुड फॉर अस बिकॉज इट इज अ गुड फैमिली टाइम, बट अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ रख के चली जाऊंगी, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, right? So I know and I'm aware of that healthy border, and I am not concerned कि अभी कोई आए, because I don't want to be a control freak anymore. I have given that people around me the choice to enjoy their freedom also as much as I do. जितना कोशिश करके बुला सकती हूँ, because that family time is important for me. As a person, as a mother, it is, as a wife, it is very important for me. But if it doesn't happen, it doesn't give me that trigger anymore. So these are few examples that I'm sharing with you, that you can practice this 4-5 times in a day. आपके occasions आएंगे, और you can practice that कि 1 मिनट की exercise है जब आप अपने आप से बात कर लेते हो. चौथे step में, first step में you recognize that emotion, imagine yourself in the worst case scenario. Third step is you imagine differently how you can respond differently, right? And then fourth step is you practice self-talking. And then once you get the answer, no, this relationship is more important for me. I cannot, I don't want to in the morning spoil my morning and somebody else's morning. Let it be. My boundaries set. And that's why first चीज मैंने आपको यही बताई थी, पहले बैठ के वो बाउंड्रीज बनाना. हर घर में अगर हम वो बाउंड्री बना लें, अभी भी बात करके वो बना लें, क्योंकि देयर इज अ क्लियर बाउंड्री एंड वी शुड गिव each individual a chance, Malini, whether it is a child or that, okay, this is my trigger point. अगर आप मुझे 3 बार कहते हो और चौथी बार कहते हो, बच्चा भी कह सकता है, राइट? कि आप जब मुझे 3 बार कहते हो और चौथी बार जब आप कहते हो तो इट डजंट हेल्प मी, यू आर नॉट इफेक्टिव. माई चिल्ड्रन टेल मी दैट ममा आपने 3 बार कह दिया और अगर मैं तब भी नहीं आया तो आप फोर्थ टाइम में इफेक्टिव नहीं हो, इसका मतलब that means I'm doing something really important or something that I don't want to come right now. So I'll say आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ. 3 बार करने के बाद अगर आपको लगे कि तो you come back and be at peace with yourself. So that boundaries, since they are established, we can talk like that. If they were not, each time every morning it will be the same drama, right? So I think this is very important. I feel that it should be helpful for the viewers that if they can practice this 1 minute exercise. Absolutely. Yeah. Absolutely, Preeti. And thank you so much for your time, for your valuable time and these valuable inputs as well. And I'm very sure all our viewers, because I'm going to put this video on YouTube as well. So everybody who watches this video will get benefited from this. ये बहुत जरूरी है जानना आपकी खुद की क्या बाउंड्रीज हैं और दूसरों की क्या बाउंड्रीज हैं, ताकि ना आप उनकी बाउंड्रीज में दखल दें और ना वो आपकी. और जब हम खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, अपनी फ्री विल रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम दूसरे की भी बाय डिफॉल्ट फ्री विल रिस्पेक्ट करते हैं. So thank you so much, Preeti, and thank you so much once again for joining us here and giving us all these valuable inputs and knowledge. Yeah, I would request Malini that we announce the future relationship series that we are coming together with. That we will actually each time on Malini's page, on my page, you will find out about the series that we are going to be making on relationships. So it will be, a relationship between the peers. It will be the relationship between the employer and the employee. Then we will have relationship between, in-laws and the daughter-in-laws and the mother-in-law, father-in-laws. Then we have a child and a parent relationship, and then we have the spouses, of course, couple relationship, which is very, very important. And my other request will be, please start talking about when you don't suffer in your relationships. Don't make it suffocating. Do not come out. It is no more a taboo. People like us are there to help you, and it is absolutely confidential between the the coachee and the coach. So please approach people who can help you think better, and help you sustain and maintain your relationship. Thank you so much, Malini. It was a pleasure on your show. All right, Preeti, have a nice day.
and stay safe and stay healthy. You too. Thank you very much. Appreciate that.